Women constitute nearly 50% population of the world. Still, there are still we all have heard no for a lot of things. एंड अगर अभी आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पर मेन वर्सेस विमेन टॉक लेकर आई हूँ, आई एम हेयर टू गिव यू अ लेक्चर ऑन द इक्वालिटी ऑफ द विमेन, नो. We have gathered here for an expert session, and today I'm going to introduce you to a woman who broke all of the stereotypes, who is the motivation for all of the young people, all male, all women, all of the young girls. You have to get a lot of inspiration from ma'am. You have to learn a lot from her. Hello everyone, I am Vaishali Kekan, the Assistant Professor, KIT Group of Institutions and founder Vaishali Z Learning. Today in this expert session, we are going to call Dr. Archana Sharma. Dr. Archana Sharma is a principal scientist in the CERN Laboratory, Geneva, Switzerland. She is active in the field since 1989. She is a pioneer of the gaseous radiation detectors. Following a graduate degree in the nuclear physics from BHU, Varanasi, India, Dr. Archana received her particle physics degree, that is a PhD degree, from DU in 1989, followed by an instrumentation for high energy physics doctorate from the University of Geneva in 1996. Sharma is an internationally recognized expert for her work on the micro-pattern detectors, and she holds a patent on the family of fast timing detectors since 2001. Dr. Sharma has spearheaded the construction of detectors and upgrades on the CMS experiment at CERN. Her projects have spanned about 20 countries, and she has yielded over 70 PhDs. Archana is on numerous international committees and an examiner for European Commission Union 2020 projects. She has also been a key member of Science Technology Innovation Policy, that is STIP, of the Department of Science and Technology India for the Mega Science Thematic Group. Dr. Sharma is an author and co-author of around 1,000 publications in the peer-reviewed journals and has delivered over 50 keynote talks in international conferences and the public addresses in various science and technology events. She currently serves as Senior Advisor for the relations with international organizations, serving as a focal point for CERN, notably for UN system. UN is United Nations, we all know that, and another organizations based in Geneva. Last but not the least, Dr. Sharma runs an NGO as well, which is called Life Lab Foundation for Research and Education based in New Delhi, facilitating STEM education training for teachers and students. Dr. Sharma is a co-author of book Noble Dreams of India, which contains the outstanding contribution of Indian scientists in the field of physics, chemistry, and medicine. And also it contains the history of 2 decades of Nobel Prizes. So it is a very interesting book for all of those who want to understand about science, and it is available for free. I am giving the link in the description as well, so you can go to the description and you can access the book. It contains the potential of science to make the world a better place. So I hope you all are going to the description and you all will get the free book as soon as possible. Another book also has been released recently by her students, A to Z of CERN, which is also an amazing book. You can also access that as well. So in this session, we are going to talk to Archana ma'am about the various professional aspects about CERN,
if a lot of students are there who want to pursue PhD outside, who want to contact CERN, and who are interested in the foreign studies, a lot of questions are there. I am going to ask a lot of questions to Archana ma'am. What is the kind of environment in CERN? What kind of work she do? How she get motivated throughout her projects? What is the collaborative environment she is working in? So we have a lot of questions. So I have divided this session into two parts. Today we are going to focus upon the professional part, the CERN aspect, and the various professional things related to the life of Archana ma'am. Tomorrow we have another session, and there we will be talking about the personal life of Archana ma'am, and we will see how she moved from Jhansi to Geneva. So this story is going to be really amazing one, and I hope a lot of young people, those young girls who can relate to her story, those are going to get motivated today. So I hope you all will get a lot of information today's session. So let's call Archana ma'am in this show. Welcome to the show, ma'am. We are so happy. I am so proud to have you on the show. And this show is going to be the biggest show for me for my entire life. Ma'am, you are such an inspiration for all of the women in India, for even for men as well. But for women, आप इतने बड़े इंस्पिरेशन है. You are my inspiration. I get a lot of motivation from you. Whenever I see you, I am like, oh God, how can someone work itna zyada? How can someone be so humble? Being at that position, being that much humble, ma'am, I am so happy you accepted my proposal and you came here. And हम जो मेरे सारे students हैं उनके लिए this is going to be such an amazing thing. सब students feel करेंगे कि आपकी journey कैसे start हुई from Jhansi to CERN. It means a lot for every student. Every girl in India is going to be so proud to see all of the things what happened in your life by your mouth. So, what are your expectations after this? वैशाली, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया, पहली बात तो। और दूसरी बात यह है कि हर एक इंडियन स्टूडेंट में और हर एक इंडियन कोलीग में मैं अपने आप को देखती हूँ, और अपने आप को उस वक्त पर देखती हूँ जब मैं छोटी थी, जब रियली स्टूडेंट से मिलती हूँ, हाई स्कूल स्टूडेंट से मिलती हूँ, तब मैं देखती हूँ कि उनकी आंखों में कितने सपने होते हैं, और हम भी ऐसे ही आगे बढ़े हैं, और हमारे साथ भी ऐसे इंटरैक्शंस हुए हैं लोगों के साथ, जो कि हर इंटरैक्शन ने कुछ छाप छोड़ी है हमारे ऊपर। तो ये एक कोशिश है कि मैं शेयर कर सकूं अपनी जर्नी जब भी मौका मुझे मिलता है, जिससे कि मुझे पता है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आपके माध्यम से मैं और लोगों से भी बात कर रही हूँ। So that is a big thing for me, and it really gives me a lot of happiness to connect with my country, with my people, with my students, और जो भी छोटा मोटा मैं कर सकती हूँ मोटिवेशन और इंस्पिरेशन देने के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टडी करने के लिए डेफिनेटली मैं करूँगी। Thank you so much, ma'am. Thank you so much again for coming to the show. And we are now starting with the various questions. So without wasting any time, I'm starting with the first question that I have for you. So the first question is based upon CERN, because बहुत सारे students, सबसे बड़ा फोकस उनका है यहाँ पर CERN. The CERN is truly a unique organization. इसके पूरे वर्ल्ड में इतनी सारी कंट्रीज में इतने सारे कोलैबोरेशंस हैं, इतने सारी यूनिवर्सिटीज के साथ, इतने सारी कंट्रीज के साथ, इतने सारे साइंटिस्ट के साथ इसके कोलैबोरेशन है. आपके लिए क्या मीन करता है ये कोलैबोरेशन CERN के साथ? एक्चुअली एक बहुत बड़ा माइंड शिफ्ट भी हुआ है पिछले कई सालों में, बल्कि कई डेकेड्स में आई वुड से, क्योंकि मुझे अब यहाँ काफी साल हो गए हैं। सो CERN में आकर मैंने ये देखा कि किस तरह से आप एकजुट होकर काम कर सकते हैं, और एक कोलैबोरेशन जो है वर्ड, उसका मीनिंग मुझे बहुत अच्छे से पता चला, बहुत अच्छे से मैंने सीखा कि हम कॉम्प्लीमेंटैरिटी में बिलीव करें, और ये देखें कि हम compete करें, लेकिन हम इस तरह से compete करें कि हम कॉम्प्लीमेंट्री हों दूसरे
कोलीग्स के साथ, दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ, और जहां भी हम काम करें हम कुछ यूनिक लेकर आए। जब हम यूनिक लेकर आएंगे तो एक बहुत बड़ा पजल जो होगा, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का हो, चाहे वो यूनिवर्स का हो, एस्ट्रोनॉमी का हो, वो पजल तभी पूरा होगा जब लास्ट पीस उसमें लगेगा। तो आप वो एक पजल के एक छोटे से पीस हो, छोटा सा आप हिस्सा है जो कि जरूरी है पूरी पिक्चर को बनाने के लिए। तो कोलैबोरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें ये एक स्पिरिट जो है, पर्टिकुलरली पैंडेमिक जो के बाद अगर आप देखें कि बिना कोलैबोरेशन के तो ना वैक्सीन होता, ना वैक्सीनेशन होता, ना क्लासेस होती, ना जूम होता, लाइक इट्स जस्ट इनक्रेडिबल कि कैसे कोलैबोरेशन ने हम सबको एक लेसन दिया है आफ्टर द पैंडेमिक, के बिना उसके हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो एक पर्सनल एम्बिशन है आप उसको रखिए, ये तो जरूरी है, क्योंकि आप आगे तभी बढ़ पाएंगे जब आपको पर्सनल एम्बिशंस हो। बट जरूरी नहीं है कि वो एक किसी के कॉस्ट पर हो। द योर पर्सनल एम्बिशंस could easily be complementary। तो सर्न में जैसे कि यूनाइटेड नेशंस की तरह से मिलके हम लोग काम करते हैं, बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, बट विदाउट द political agendas and without any spirit of harming each other in any way. So collaboration definitely means कि हम खड़े हो सकते हैं, दूसरों के कंधों के ऊपर भी खड़े हो सकते हैं, और हम अपने ऊपर भी बच्चों को ऊपर लेके जा सकते हैं। मैम, यू गेव सच अ वंडरफुल मीनिंग टू कोलैबोरेशन। वी जस्ट न्यू कोलैबोरेशन की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के बीच में हो रहे हैं, एंड इट इज नथिंग रिलेटेड टू साइंस। यू गेव न्यू मीनिंग टू इट। सो साइंस से भी कोलैबोरेशन को कैसे रिलेट कर दिया, इट इज सो इनक्रेडिबल। मैम, अब जो ये कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट है, इसमें आपको भी बहुत सारे चैलेंजेस आते होंगे, अभी भी आते होंगे, पहले भी आए होंगे। सो व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय यू पर्सनली इन दिस एनवायरनमेंट? वेल, सबसे पहले तो आप अपनी जगह बनाने के लिए चैलेंज्ड होते हैं, क्योंकि व्हेन आई केम फ्रॉम इंडिया आई हैड नेवर बिग लेबोरेटरी और एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन जो कि यहाँ पर हर जगह हर कोने में उसके उनके यूज करना पड़ता है हमको। उसी तरह से सॉफ्टवेयर भी अगर देखा जाए तो जो मैंने सॉफ्टवेयर पढ़ा था, फोर्ट्रैन 77 टाइप का सॉफ्टवेयर जो मैंने पढ़ा था, यहाँ पर तो बिल्कुल ही अलग दुनिया और अलग तरह का सारा चलन था जिस वक्त मैं यहाँ पर आई थी। सो वो एक तरह का चैलेंज रहा मुझे ओवरकम करने के लिए। पहले तो वो जब आप यंग होते हैं और आपको जब कुछ नहीं आता है तो एक झिझक भी होती है, आप दूसरों से कैसे पूछेंगे कि कैसे इसको आगे लेकर जाएं। और जब आपको एक सवाल नहीं है, आपके पास रोज दिन के 5 सवाल हैं कि पूछने के लिए, ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, तो एक तरह का यू हैव टू ओवरकम दैट काइंड ऑफ हेजिटेशन। एंड काफी टाइम मतलब उसमें लग गया सीखने समझने में, और किस तरह से आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए और आप लोगों के साथ काम करें, पूछे। एंड आई डिड अ सेकंड पीएचडी फॉर दिस वेरी रीजन, क्योंकि मैंने यही सोचा कि भाई पढ़ने ही लगो चुपचाप से, तभी सीख पाओगे सारी चीजें। सो यूनिवर्सिटी ऑफ जिनीवा में मैंने एडमिशन ले लिया और दोबारा से मैंने फिर काम शुरू किया। लेकिन यही है कि आप अपनी स्पिरिट को कभी ना तोड़ें, उसको आगे ही बढ़ते बढ़ते जाएं, और उसको ऐसे सोचें कि मेरे को बस सीखना है, मुझे आज क्या सीखना है। इट डजंट मीन आप फेल भी हो गए तो क्या हुआ, दैट इज अ स्टेप टुवर्ड्स मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। फिर बस धीरे धीरे एक तरह से मेरी स्पेशलाइजेशन आ गई, क्योंकि मैंने एक ही वो एक मेरा लेट्स से फॉर्चुनेट रही मैं कि मुझे एक ही डायरेक्शन में काम करने को मिला। मैं गैस डिटेक्टर्स के ऊपर काम करती रही, ये नहीं हुआ कि एक से चेंज हो गया फिर सब्जेक्ट चेंज हो गया, ऐसा कुछ नहीं रहा। तो जब 10 साल तक आप एक सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप सीख ही लेते हैं इन सब चीजों में। So that was a good thing and I found my place in the big collaboration कि मेरा क्या था, और मैंने वाकई कोलैबोरेशन को ही यूज किया इसमें, क्योंकि जिससे मैं सीख सकती थी उससे सीखा, और जिसको मैं सिखा सकती थी उसको सिखाया भी साथ में। So then we became a good network, good team and उस तरह से उसका मुझे बहुत फायदा बाद में हुआ है जो मैं आपको बताऊंगी।
मैम, मुझे नहीं पता था यू डिड अ सेकंड पीएचडी and a lot of secrets are going to open today, and this is such a motivation. How can one person do second PhD? Doing one time is such a big thing for each and every person, and you did it twice, ma'am. So the next question is, without wasting any time, I am asking the next question. मैम, जैसे कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट जैसे सन में है, क्या आपको लगता है कि बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस में भी ये यूज होना चाहिए? मैं तो कहती हूँ कि यदि हम आज की दुनिया को देखें, यूनिवर्स को देखें और जिस तरह की प्रॉब्लम्स को हम फेस कर रहे हैं, आई मीन सबसे आगे हमारे आंखों के आगे तो पैंडेमिक ही है। और उस पैंडेमिक को लेकर ये तो बिल्कुल शॉर्ट टाइम में हमने देखा कि पता नहीं कहाँ से आ गया ये सडनली हमारे आंखों के आगे, हमने सोचा तो नहीं था इसके बारे में। और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हमें पता है कि हैं, लेकिन हम उनके लिए आंखें नहीं खोलते हैं अपनी। So, for example, you know, there is global warming, climate change, environment pollution. There is health disease like cancer. You know, healthcare is a very big issue. तो इस तरह की जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है दुनिया में, यू नो, कि किस तरह से हम वो करें, कंटेन करें ग्लोबल इश्यूज को, वो ग्लोबल इश्यूज के लिए हमें ये देखना है कि हमारी बॉटम लाइन क्या है। और बॉटम लाइन ये है कि हमें ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस, कंट्रीज, सब जगह हैप्पीनेस चाहिए इन द एंड। और हैप्पीनेस कैसे आएगी? कि जब हम हेल्थी होंगे, जब हमारा एनवायरनमेंट हेल्थी होगा। और वो सब कहाँ से आएगा? ये सब तभी सॉल्व हो सकते हैं कि जब हम मिलके काम करें। और ऐसा भी नहीं है कि हम एक जगह पैंडेमिक को खत्म कर दें और दूसरी जगह चालू रहे, ये हो ही नहीं सकता है। until we have fixed the last patient, we'll have the pandemic on the planet। तो उसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग की भी यही इश्यू है कि अगर यहाँ हवा पोल्यूट होती है, या फिर अर्जेंटीना में होती है, या कहीं ब्राजील में होती है, तो वो इंडिया में भी होगी। हम यहाँ स्विट्जरलैंड में चुपचाप से छुप के नहीं बैठ सकते हैं, यहाँ पर भी बहुत इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का। सो वी हैव टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस टुगेदर। एंड जो कोलैबोरेशन मॉडल है, अगर अगर हमारा इंस्टीट्यूशन या हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारी सोसाइटी, हमारी कंट्री उसमें प्लग इन कर लेती है एक कोलैबोरेशन मॉडल में, तो अगेन दैट पॉइंट अबाउट कॉम्प्लीमेंटैरिटी, कि हमारे अंदर एक एक्सपर्टीज है, आपके पास दूसरी एक्सपर्टीज है, हम उसको कैसे मिला के हम उसको आगे लेके जा सकते हैं। सो आई डू बिलीव कि कोलैबोरेशन इज द न्यू कॉम्पिटिशन फॉर द वर्ल्ड। मैम, आपने पैंडेमिक की बात करी थी, आपने इतने सारे बहुत सारे थ्रेट्स भी बताए कि वर्ल्ड को है। सो दिस क्वेश्चन इज अपार्ट फ्रॉम द कोलैबोरेशंस, दिस क्वेश्चन इज कि मैम, नेक्स्ट पैंडेमिक आपके अकॉर्डिंग कौन सी हो सकती है इन सब में से, और उसके लिए हम लोगों को पहले से ही क्या प्रिकॉशंस ले लेनी चाहिए? देखिए, बहुत सारे तो नोन अननोन्स हैं जो हमें पता है, जैसे कैंसर मैंने बताया, वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एवरीबडी नोज अबाउट इट। और हमारी कंट्री में आप नंबर्स अगर देखेंगे तो 1.5 मिलियन नए केसेस ऑफ कैंसर आते हैं एवरी सिंगल ईयर। 1.5 मिलियन, आप सोचें इस बारे में। तो वो अब यदि हम कंपेयर करें अपने कोरोना पैंडेमिक से, तो ये मिलियन ये कहाँ स्टैंड करता है, यू नो। सो वी आर नॉट इवन अवेयर कि हमारे कंट्री में कहाँ कहाँ किस तरह की जरूरत है। आप एक विजिट कीजिए अगर टाटा मेमोरियल सेंटर है बॉम्बे में, तो जितनी कैपेसिटी उसके अंदर है उससे डबल लोग बाहर खड़े हैं लाइन में अंदर जाने के लिए, यू नो। और ये जो चीजें हैं, ये डिफिकल्टीज हैं, मैं तो कहती हूँ कि सिर्फ ये स्टडीज से, एजुकेशन से, साइंस इंजीनियरिंग की अवेयरनेस से, और जो बच्चे आज में हाई स्कूल में हैं या फिर 12th ग्रेड में हैं या फिर यूनिवर्सिटी में हैं, दीज आर द चिल्ड्रन हु विल टेक केयर ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द फ्यूचर, यू नो, इन द सेंस कि जब वो बड़े होकर बाहर आएंगे तब वो चीजें इतनी बड़ी हो जाएंगी, इतने बड़े प्रॉब्लम्स हो जाएंगे कि उनको सॉल्व करना पड़ेगा। So how will they solve it unless they know about it and that they are, you know, preparing to solve the problems? And that can only happen with science and investment in science, in research and education. तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे कंट्री में बहुत पोटेंशियल है, और उस पोटेंशियल को अनलीश करना है। सिर्फ हम लोग का काम यही है एज टीचर्स एंड एजुकेटर्स कि हमको वो पोटेंशियल को अनलीश करना है।
दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू मैम। हर चीज के आपके पास एक सेपरेट ही परसेप्शन है। आई एम सो ओह, हैप्पी हम लोगों को इतना नई चीजें जानने को मिल रही हैं। मैम हम मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो लाइफ लैब फाउंडेशन से मैं आपके साथ कनेक्टेड हूँ, दैट इज डूइंग सच अ ग्रेट थिंग। स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल यू एज वेल, मैम ने एक एनजीओ फाउंड करा था, Life Lab Foundation, and even I am also connected with it, and it's such a platform that is encouraging students, even it is encouraging teachers, and it is providing them support, exploring their interest in science, technology, engineering as well as management subjects. So ma'am, आपके अकॉर्डिंग इस कोलैबोरेशन से इंडिया के यूथ पर क्या इफेक्ट आया है? ऐसा तो बहुत बड़ा इफेक्ट तो कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि जो भी कुछ कर रहे हैं आप, हमारी कंट्री इतनी बड़ी है कि आप कुछ भी करें, इट्स लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन, यू नो। लेकिन यह है कि कहीं ना कहीं तो करना ही है, और कहीं ना कहीं से ही आगे एक एक स्टेप लेकर आपकी जर्नी शुरू होती है। तो मैंने यही रियलाइज किया कि अपनी जो मेरी मुश्किलें आई पढ़ने में और समझने में, और आगे मतलब वर्ल्ड फील्ड में आके प्ले जब करना शुरू किया मैंने, इंटरनेशनल फील्ड में, तब मैंने देखा कि मेरी प्रिपरेशन तो काफी खराब थी। इवन दो ऐसा तो नहीं था कि मैं बैड स्टूडेंट थी, मेरे खूब अच्छे मार्क्स आते थे, अच्छे अच्छे, आई वाज टॉपर इन माय बैचेस एंड सो ऑन। लेकिन लेकिन वो नहीं था इनफ। सो और उसके अलावा भी यहाँ पर सर्न में मैं हमेशा से, जब से मेरे पास पॉसिबिलिटी हुई, हमेशा मैंने स्टूडेंट्स लिए इंडिया से, कि जो आना चाहे या फिर जो भी कहीं पर भी प्लेसमेंट्स वगैरह जैसे करते हैं इंस्टीट्यूशंस में, आई ऑलवेज हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया। एक साल तो 40 स्टूडेंट्स थे मेरे पास। लेकिन वही बात है कि बहुत कम है उसमें फ्रैक्शन की जो इंटरनेशनल फील्ड पे तैयार है। ये जो गैप मैंने देखा कि किस तरह से, मेरा जो गैप था बहुत बड़ा था, लेकिन हाँ आजकल के बच्चों में भी काफी गैप है बिटवीन द पेपर सीवी एंड व्हाट दे कैन एक्चुअली डू ऑन द फील्ड इन टर्म्स ऑफ यूजिंग द नॉलेज दैट दे हैव लर्नड। तो ये जो गैप को फिल करने के लिए मैंने सोचा कि किस तरह से मैं अपनी लाइफ के लैब में मैंने जो कुछ सीखा है, मैं एक इसको किसी फॉर्मल वे में आगे लेके जाऊं, और किस तरह से मैं बच्चों को आगे मोटिवेट करूं। तो क्योंकि ऑफ कोर्स हर बच्चा या हर टीचर तो इंडिया से यहाँ नहीं आ सकता ना, तो मैंने फिर इंडिया में जाना शुरू किया, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन शुरू किया, वहां बच्चों के साथ इंटरेक्शन शुरू किया, टीचर्स के साथ किया। तो एक तरह से एक तांता बन जाता है ना, आप किसी को बाय वर्ड ऑफ माउथ थिंग्स स्प्रेड एंड पीपल रियली एंजॉय द इंटरेक्शंस, क्योंकि वी हैव गॉट सम वर्कशॉप्स, सम ट्रेनिंग्स। एक बार तो मैं यहाँ से टीचर्स को लेके गई इंडिया में, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि व्हेन माय सन, यू नो, माय माय आई हैव अ बॉय, और उसने अपनी आईबी कर रहा था यहाँ पर, फिजिक्स पढ़ा पढ़ा जब उसने सब्जेक्ट चूज किया, तो उसने मुझे बोला कि मम्मी मैं फिजिक्स ले लेता हूँ हाई लेवल। मैं कहा हाँ फिजिक्स तो हो जाएगा, यू नो। सो जब उसको पढ़ाना शुरू किया क्लास में वहां पर इनके स्कूल में, मैंने देखा कि मेथड ऑफ टीचिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट। एंड ऑफ कोर्स जो रिगर है, जो डेप्थ है, जो कॉम्प्रिहेंशन है, बहुत बहुत अलग है। ये इस बात को काफी साल हो गए, वैसे अब तो 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन मैंने ये सोचा कि हमारे बच्चे कैसे वंचित रह जाते हैं इन सब चीजों से। वो एक मन में ख्याल आने से मैंने ये शुरू किया कि इस तरह से अगर यहाँ के जो टीचर्स हैं वो हमारे टीचर्स के साथ बात करें, तो एटलीस्ट वो भी सीख पाएंगे कि कुछ गैप है क्या। ऐसा नहीं है, हमारे कंट्रीज में भी बहुत ट्रेनिंग्स हैं, बहुत अवेयरनेस है, और बहुत टीचर्स कोशिश कर रहे हैं अपने मतलब मैक्सिमाइज कर रहे हैं अपने उसको रीच को। एंड पर्टिकुलरली विद द टूल्स दैट वी हैव टुडे, यू नो, आज तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हमें नहीं पता, यू नो एवरीथिंग, इवन फॉर द स्टूडेंट्स फॉर दैट मैटर। लेकिन हाँ मेरे मन में ये बात आई तो मैंने शुरू किया, और जब हम यहाँ से साइंटिस्ट को, एक्सपर्ट्स को, और कुछ टीचर्स को भी यहाँ से लेके गए और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करी, हमने टीचर्स ट्रेनिंग करी इंडिया में, वो बहुत अमेजिंग हुई, बहुत अमेजिंग हुई। क्योंकि टीचर्स ये बोल के गए कि मैम हमने शायद अगर हम 30 साल पहले ये करते तो इसका क्या डिफरेंस होता है हमारे हमारे मतलब बच्चों के जीवन में। और वो ये जो टीचर्स हैं ये तो मल्टीप्लायर्स होते हैं, हर साल 50-100 बच्चों को पढ़ाते हैं, तो
I mean, I've been very late in doing what I did, but कोई बात नहीं, कहीं तो शुरू करना है. मैम द थिंग अबाउट टेक्नोलॉजी यू सेड दैट इज कम्प्लीटली ट्रू. मैं अपना आपको थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ एंड आई विल टेल यू माई इंसिडेंट्स. व्हेन आई Please. जॉइन कॉलेज, यहाँ पर सब कुछ हम लोग जैसे इंडिया में टीचिंग होती है कॉलेजेस में, हम लोग जाते हैं बोर्ड पे पढ़ाते हैं, पीपल आर स्लीपिंग मोस्टली. सुबह 9 से 8, अगर 5 बजे तक क्लास हो रही है, उसके बाद भी बच्चों की एक्स्ट्रा क्लासेस हो रही है कुछ कुछ, तो ही कैन नॉट फोकस इन ईच एंड एवरी क्लास. वो तो उसका भी ट्रू है. कुछ सो जी. जाते हैं फिर उधर, कुछ लोग टायर्ड होते हैं, ही कैन नॉट लिसन एवरीथिंग. सो आई वाज आल्सो वेरी स्मॉल, आई वाज यंग, 23 एज की थी व्हेन आई जॉइंड द कॉलेज. एंड आई फेल्ट कि ये मैं आई कैन रिलेट विद देम एंड आई नीड टू डू समथिंग फॉर देम, जिससे कि ऐसी चीज हो जाए जिससे कि इनको कुछ फायदा हो जाए. ड्यूरिंग माई एग्जाम टाइम आई वॉज लुकिंग फॉर द थिंग्स कि भाई कहीं से नोट्स मिल जाए, कहीं से कुछ मिल जाए, जिससे कि थोड़ा प्रेशर कम हो जाए. सो there is in my college there is a team, the central lab team, वो ट्रेनिंग देते हैं हम लोगों को about all of these softwares, about the various tools that we can use to record the things. And in the college they have studio. So अब ये भी चीज उधर है बट काफी जगह ये चीजें नहीं है. सो पीपल लाइक मी, अगर आई फेल्ट आई वॉज रियली ब्लेस्ड कि उन लोगों ने मुझे सपोर्ट करा, उन लोगों ने मुझे ट्रेनिंग दे दी. आई गॉट अडेप्टेड टू द टेक्नोलॉजी व्हेन एवर आई हैड टू गो एंड लर्न अबाउट द एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग पार्ट. तो दे वर रियली हैप्पी कि चलो कोई आ रहा है हम लोगों से सीखने, एंड दे वर रियली सपोर्टिंग. ऐसा बट काफी लोगों के पास नहीं है. एंड वॉट एवर यू आर डूइंग, इट्स सच अ ग्रेट थिंग. टीचर्स को टेक्नोलॉजी से अडेप्ट करवाना, इट्स लाइक मल्टीप्लाइंग. मैम जैसे मेरा व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन दिस 2 years, अभी 2 years भी कंप्लीट नहीं हुए, एंड आई फेल्ट कि द ग्रोथ इज लाइक एक्सपोनेंशियल व्हेन यू ट्राई टू, when you try to do something for people, they love it, they love you, they motivate you, they support you. Ma'am, like the way I am a big fan of you, I love what you do. That is very sweet of you, Vaishali. Very sweet of you. I mean, लेकिन ये है कि कुछ अलग नहीं है. सब अपने 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 एरिया में अपने अपने जो कुछ जिसको आता है, आई थिंक सब कोशिश करते हैं. और मोटिवेशन वहीं से आता है कि जब आप कुछ कर पाते हैं तभी आपको भी मोटिवेशन आता है. मुझे आपसे मोटिवेशन आता है कि आपने कितनी मेहनत करी, कितने यंग एज में आप क्या क्या कर रहे हैं. तो दैट इज अमेजिंग एज वेल. मैम दैट इज सो हम्बल फॉर यू ऑफ यू. मैम अभी टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, जो टेक्नोलॉजी सर ने ओरिजिनली अडेप्ट करी थी, दैट वाज एक्सीलरेटर्स. अभी वो ऑब्सोलीट हो चुका है. एंड द टेक्नोलॉजी यू आर यूजिंग टुडे, इट कैन ऑल्सो बिकम ऑब्सोलीट. सो how do you adapt to these changes in technology? Because personally, when this corona came, we had to write from a whiteboard to that pen tab. It was such a big thing for us. We took 6 months कि इस पे लिखना सीख जाए. पहले तो बहुत ही गंदी राइटिंग आती थी, and then we practiced and then we got adapted to it, and now we are feeling it's such a great thing. How you are adapting to those big technology changes? So first of all, again, it's not only me, you know, we are a very, very big collaboration, and people work together. People are working in the United States, people are working in Japan, in India, and all over Europe also. So any project that we do at CERN, it begins with a vision over 10, 20, 30 years. So how can we build something that can sustain its own technology for this longer time? Because LHC, the Large Hadron Collider, the accelerator, it was approved in 1985, and the building started in 93, and in 2010 the first collisions happened where we started taking data. So there was building, commissioning, installing, etc., etc., etc. However, if you always keep waiting for the last technology, you will never build anything. So there are processes जो कि मॉनिटर करते हैं किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, कितना काम हमारा हो चुका है, किस पॉइंट पर आकर यू हैव टू स्टॉप एनी मोर R&D एंड बिल्ड द मशीन. लेकिन R&D फॉर द मशीन चलती रहेगी साइड में. यूएस में उन्होंने आगे और मैग्नेट्स बनाए जिससे कि हम LHC को अपग्रेड कर सकेंगे. तो अभी जो आजकल चल रहा है काम, वो
LHC को अपग्रेड करने का काम चल रहा है, और 2027 में बहुत बिग चेंज होने वाला है LHC में. सो इट इज अनबिलीवेबल कि किस तरह से आपका ये तांता चलता रहता है, क्योंकि अगर आप देखें कि आपका लैपटॉप ही आपका 6 महीने में ऑब्सोलीट हो जाता है. सो यू नीड अ न्यू वन एवरी ईयर और एवरी 2 years. यू अब पैसा कहाँ से आएगा, ये तो क्वेश्चन आएगा ना फिर. सो वी हैव टू कीप दिस विद अ विजन कि हम किस तरह से इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं, और किस पॉइंट पर उसको अप्रूव करके हम एक अपग्रेड बनाएंगे कि भाई अगले 5 साल हम इसी स्टेज में रहेंगे, एंड दैट वी डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द साइंस दैट वी हैव टू डू, ऑन द फिजिक्स दैट वी हैव टू डू. तो इस तरह से एक जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट. ये जो एक्सेलरेटर है, इट कॉस्ट $1 billion, और सारे जो एक्सपेरिमेंट्स उसके ऊपर बैठे हैं वो भी $1 billion के हैं. तो अब यदि आप सोचें कि हम अगर जो फिजिक्स कर रहे हैं और वो फिजिक्स भी ना कर पाए, तो ये तो इट्स गोना बी अ वेस्ट, और ये सब पैसा टैक्स पेयर का आता है. तो वी हैव टू जस्टिफाई कि हमारे जो गोल्स हैं वो उसी तरह से बनाते हैं हम गोल्स को कि जिससे कि एक स्टेप हम ले पाए. और आपको तो पता ही होगा कि हिग्स बोसॉन जो गॉड पार्टिकल है वो यही मिला था, एंड दैट वाज द टारगेट ऑफ द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर. 2010 में वो चालू हुआ, 2012 में हिग्स बोसॉन मिला, 2 साल में. तो द प्रेपरेशन वाज वेल डन, और उसका जो R&D चल रहा है टू कंटिन्यू द एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम, और अपग्रेड करने का भी प्रोग्राम चल रहा है. तो ये एक management and collaborative management, I should say, is the expertise to learn as well. मैम द विजन बिहाइंड ऑल दीज प्रोजेक्ट्स इज रियली अमेजिंग. वो कब से पहले से इतना सोच के आगे का चलते हैं मैम. देन इफ यू आर टॉकिंग सो मच अबाउट द विजन कि इतने पहले से ही स्टार्ट हो गया सब कुछ, देन सडनली व्हेन कोरोना केम, हाउ डिड द थिंग्स चेंज एट CERN? जैसे यहाँ इंडिया में वी फेल्ट, एवरीवन फेल्ट कि वर्क फ्रॉम होम आ गया, एवरीथिंग वाज चेंज. वहां पर मैम कैसे चेंजेस आए हैं? Well, just like everywhere, जैसे कि इंडिया में भी, यहाँ पर भी एकदम से चीज बिल्कुल बंद हुई पहले तो, क्योंकि पहले तो कभी किसी ने ये किस तरह का ये आ रही है एक वेव, वो पहले चाइना में, फिर इधर इंडिया में भी शुरू हो गया था. और हमें शुरू में तो ऐसे ही लगा यहाँ कैसे हो सकता है, यू डोंट इवन फील लाइक दैट. लेकिन वो, और शायद इंडिया में भी ऐसे ही सोचा होगा, अरे ठीक है वो दूर कहीं हो रहा है, हमारे पास नहीं आने वाला ये. लेकिन वो यहाँ भी हुआ, और विद इन like 24 hours we had to just stop everything and come home. और फिर हमने घर से वर्क करना शुरू किया. शुरू में तो अच्छा भी लगा थोड़ा सा कि भाई हम, क्योंकि घर में रह ही नहीं पाते हैं, सुबह 8 बजे निकल जाते हैं, रात को 8 बजे वापस आते हैं, बीच में 1 घंटा लंच के लिए कभी आ गए तो कभी नहीं आए. लेकिन अब जो एक अलग तरह से अडेप्टेशन हुआ है कि किस तरह से हम घर से भी काम कर सकते हैं, और जो लैब के काम है, मेरे बेचारे बच्चे काम कर रहे हैं लैब में, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने बहुत सफर किया इस पीरियड में, क्योंकि देयर वाज अ बिग रिस्क ऑफ कोविड आल्सो, और हमारे फिर प्रोटोकॉल्स बने कि किस तरह से हम काम करेंगे. एक बबल यहाँ काम करेगा, एक बबल वहां काम करेगा, वी विल नॉट मिक्स देम अप. और बच्चे बेचारे बीमार भी पड़े बीच में. So we have had a lot of repercussion of the pandemic. लेकिन चलिए वो सब पीछे है अब हमारे, और अब हम बिल्कुल जोश से आगे चल रहे हैं. हमारा काम जैसे हमारी प्लानिंग थी उसके हिसाब से ही चल रहा है आगे. मैम द नेक्स्ट क्वेश्चन, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एट अ पर्सनल लेवल आपने बताया कि जैसे आपने पहले भी PhD करी हुई थी, and then you went there and you did PhD again. You were a bit lost when you joined CERN. So how did you deal with that experience? हर किसी की लाइफ में लो टाइम आता है, and what about you? ऐसा है ना, जितना जल्दी आ जाए लो टाइम उतना अच्छा है ना, क्योंकि फिर आप सीख जाते हैं, अरे दिस इज अ पासिंग फेज, निकल ही जाएगा. हर शाम के बाद सुबह भी होती है, तो देयर इज नेवर अ टाइम कि आप सोचे कि ये तो हमेशा के लिए ये प्रॉब्लम आ गई. तो I really try to focus on the solutions and the problems. जो भी प्रॉब्लम आती है वो एक सोल्यूशन लेकर आती है, आपको ढूंढना है कि वो सोल्यूशन क्या है बेसिकली. सो आई फील कि ये एक तैयारी जरूरी है एक स्टूडेंट के लाइफ में, और हमारे यहाँ थोड़ी कम होती है, एटलीस्ट मेरे टाइम में जब मैं बड़ी हुई हूँ.
बिकॉज वी आर ओनली सेलिब्रेटिंग सक्सेस, यू नो, कि अगर आपके नंबर पूरे नहीं आए, 99 ही आ गए अगर 100 में से, तो वो एक 1 मार्क के पीछे भी आप परेशान ही रहते हो फिर. So we need to completely redefine what is a failure, you know, and we do not need to hide it. हमको मेरा सबसे बड़ी ग्रोथ तो तभी हुई है जब मैंने इस चीज को रियलाइज किया कि फेलियर्स डजंट मीन कि हो गया कि मैंने बहुत बड़ा कोई गलत काम कर दिया या मेरे से ये मेजरमेंट नहीं खत्म हो रहा है तो देन इट्स अ फेलियर, यू नो, एंड दैट फेलियर इन फैक्ट इज अ लर्निंग. क्योंकि मैंने रोज रोज लर्निंग करी है. आप सोचिए कि पिछले 30 साल से मैं रोज रोज लर्निंग कर रही हूँ. और अभी अभी मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ. आई एम वेरी प्राउड. आई हैव टू शो यू नाउ. होल्ड ऑन 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड. सो यू सी दीज टू. ये मेरी बिल्कुल लेटेस्ट डिग्रीज हैं 2. ये आई हैव जस्ट कंप्लीटेड 2 कोर्सेज. और आप देखिए, मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा होगा कि मैंने ये भी करूंगी मैं. कैन यू सी? Right? Yes, ma'am, it is visible completely. So I have done two courses. One is about high impact leadership, and the other one is about sustainability. You know, because I want to work on sustainable development goals, and I needed to find more understanding. What are the bigger problems? What are the things that we must solve for the people, and so on. So climate change, sustainability, and high impact leadership. So I just finished this course और अभी आई है मेरी डिग्री. So Ma'am, you are such a great person. आप हमेशा लर्निंग कर रहे हैं. मतलब आई यूज टू फील कि मैं सेम सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ बच्चों को. नाउ आई शुड मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, एंड आई यूज टू फील सो प्राउड कि आई हैव डन समथिंग, कि मैंने नया सब्जेक्ट पढ़ा लिया. Now when I'm looking at you, 30 years of learning, it is such a great thing, ma'am. Vaishali, we have to continue to still learn, because you know, learning is not only in the books. You know, the learning is also in behavior, in experiences, in managing other people, teams, difficulties. You know, all that is a learning. And I feel कि जो भी तकलीफ अगर आ जाए, पहले आ जाए, जिंदगी में ज्यादा तकलीफें आ जाए, तो it's an actually bonus. So it really develops your muscles, and particularly for women, I have to say that it's very important to develop those muscles. क्योंकि आप जब बाहर आएंगे पढ़ने, काम करने, रिसर्च करने, I mean, हर तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी. So be ready for that. Ma'am, I will look towards the problem in a different manner. I used to cry, oh, problems aa gayi, and now I have to face this as well. Now I will be feeling कि चलो मेरी प्रॉब्लम जल्दी आ गई है, इसे लेट आनी थी. It's such a great thing you told us. Ma'am, now I am moving to the next question. The next question is कि what does it take for an organization to build a framework जो कि continuously adapt करता जा रहा है नई information? What does it takes? I think एक बहुत important part है कि leadership बहुत जरूरी है. तो लीडरशिप जब बने और बिलीफ इन द फैक्ट कि हमारे गोल्स जो हैं वो सेम हैं. सर्न में जैसे बहुत डिफरेंट कंट्रीज से लोग आते हैं, और एक कंट्री के लोगों का एक गोल हो सकता है, दूसरे कंट्री का दूसरा गोल हो सकता है, यू नो. सो हाउ आवर लीडर्स आर मैनेजिंग टू कीप दैट विजन विच बिकम्स अ कॉमन विजन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो एक जो मैनेजेरियल फ्रेमवर्क है जिसमें कि हम अग्री करते हैं, हमारे मैकेनिज्म बने हुए हैं कि एक पर्टिकुलर, जिसे कहते हैं सीढ़ियां बनी हुई हैं कि आप आके यहाँ खड़े होकर रिपोर्ट करेंगे कि आपने क्या किया है, तब आप मतलब दूसरे स्टेप पर जाएंगे, एंड सो ऑन, यू नो. इन द वे आप सोचे ना कि अगर घर बनाना है एक, तो आप पहले फाउंडेशन बनाएंगे, फिर फर्स्ट फ्लोर बनेगा, फिर सेकंड फ्लोर बनेगा. तो उसी तरह से साइंस में भी हर फ्लोर पर पूरी दुनिया के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और सब अग्री करते हैं, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं. और ओवरऑल तो बहुत इंपॉर्टेंट है हर कंट्री के लिए, क्योंकि दे आर इन्वेस्टिंग मनी, कि हम अपनी कंट्री के लिए इसमें क्या है. हम ऐसे ही तो पैसा नहीं दे रहे हैं, यू नो. 1 बिलियन का यहाँ अगर एक्सपेरिमेंट हो रहा है और हम थोड़े से मिलियन ही डालते हैं, अगर हम उस मिलियन का कम से कम 10 टाइम्स वापस आना चाहिए कंट्री में, in form of training, capacity building, doing the research, publications, and बहुत सारी चीजें we can actually try to understand.
तो CERN में ये एक जो कोलैबोरेटिव स्पिरिट है, आई कम बैक अगेन टू दैट, यदि हमने उसकी एसेंस को पकड़ लिया और वो हम अगर अपने इंस्टीट्यूशंस में इस तरह से कोलैबोरेट करें कि हम अपने ही कंट्री को बहुत आगे लेके जा पाएंगे। मैम जैसा आपने बताया कि इतने सारे कंट्रीज, इतने सारे साइंटिस्ट, इतने सारे लोग एसोसिएटेड हैं इतने सारे प्रोजेक्ट्स में, तो प्रोजेक्ट्स का गेस्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा होता होगा। सो हाउ डू यू मैनेज टू वर्क फॉर दोज लॉन्ग पीरियड विदाउट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड? वी ऑल फील फ्रस्ट्रेटेड कि लाइक मेरा ही एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे लाइक आई स्टार्टेड पीएचडी एंड आई वाज फीलिंग कि 5 years एटलीस्ट 4 years I have to give. How to get motivated throughout this long time? Yeah, it's not easy, of course. सबसे पहली बात तो आप जो कर रहे हैं आपकी चॉइस है, first of all. So you have chosen to do something, तो might as well do it well, पहली बात तो ये है, जब लिया ही है, बीड़ा उठाया है तो उसको आगे लेकर जाएं। और दूसरी बात ये है कि मैं अपनी बात बताती हूँ कि when I came to CERN तो I was in my 20s, और उस वक्त भी ऑफ कोर्स बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा वो नहीं हो रहा, एंड सो ऑन। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारा स्पैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग बड़ा होता जाता है। तो अब मुझे वो पीरियड देखकर लगता है कि कितना डिफिकल्ट पीरियड था, लेकिन निकल गया और मैंने बहुत कुछ सीखा वहां पर। पर्टिकुलरली पीएचडी पीरियड तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि आप वर्क कर रहे होते हैं टिपिकली, एंड यू आर ऑल्सो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर देयर। एंड पीएचडी का कुछ कभी कभी क्या होता है ना कि एक फेज बीच का आता है कि जहां आपको समझ नहीं आता कि वेदर इट्स एक्चुअली गोइंग टू फिनिश और नॉट, तो वो उसका अंत नहीं दिखाई देता है आपको, तो वो एक परेशानी वाली बात आ जाती है। लेकिन अगर मंथली ईयरली गोल्स अगर सेट किए जाएं और फ्लेक्सिबिलिटी रखें कि यदि मेरा नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मेरा ये प्लान बी है, एंड आई विल शेयर विथ यू, बेबी आई डोंट नो अभी है कि नहीं मेरे पास अवेलेबल, बट आई क्रिएट अ बिग टेम्पलेट ऑफ द होल ईयर ऑफ 2 years, जिसमें कि मेरे मंथली गोल्स भी होते हैं, ट्राई मंथली गोल्स होंगे, वीकली गोल्स भी होंगे। सो यदि ऑफ कोर्स इट्स अ लॉट ऑफ वर्क, और हम सब स्लिप करते हैं, एक बार बना लेंगे फिर भूल जाएंगे उसके बारे में बाद में, बट जो नेट पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, अगर आप उसमें नेट पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करते रहे ना कि ठीक है चलो 1 महीने में नहीं देखा तो 3 महीने में देख लिया एक बार, so that kind of thing keeps you motivated and mark little victories on the way, छोटी छोटी चीजें। पूरा हिग्स बोसॉन तो एक दिन में नहीं मिल जाएगा ना आपको, ना ही पीएचडी एक दिन में होने वाली है, लेकिन एक दिन बहुत जरूरी है। एवरी सिंगल डे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अच्छे से मुझे याद है कि जब मैं अपना पीएचडी का कर रही थी काम, तो ऑलवेज अगर कोई डिस्टर्बेंस आ जाएगी तो उसका एक्सक्यूज यही होता है, अरे आज ही थोड़ी हो जाएगी पीएचडी, लेकिन दैट इज द पॉइंट कि एवरी सिंगल डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज समझ के चलिए, और पीएचडी इज अ प्रोसेस जिसमें कि आप अच्छे से सीख सकते हैं कि हम बड़े बड़े ऐसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स को कैसे खत्म करें, so you have to find a way, and that knowledge really is very very how can I say strengthening for a person जब एक बार वो समझ आ जाए तो। मैम आपने फेलियर्स के बारे में बात करी थी, जैसे कि फेलियर्स आते हैं ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, सो आप एज अ साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं एंड यू वर्क टू अनरेवल द मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यू क्रिएट हाइपोथेसिस, यू टेस्ट देम, you are doing a lot of things and failing is a common phenomena. वहाँ पर भी आप फेल थोड़ा तो करते होंगे टेस्टिंग एंड ऑल, सो आप कैसे ओवरकम करते हैं? हाउ डू यू रिगार्डनेस ऑफ ऑल दीज फेलियर्स, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ गोइंग? Well, as I said, I invest very heavily in my team, I invest very heavily in my students, my colleagues, and मैंने पिछले 10-12 साल में एक बिल्कुल नया कोलैबोरेशन सेटअप किया था, पूरे दुनिया से लोगों को मिला के, इंडिया से बहुत सारे लोगों को मिला के, एंड वो बहुत सक्सेसफुल हुआ है। अब हमने जो डिटेक्टर्स मैंने सोचे थे 2009 में, जबकि हर इंसान ने मुझे ये बोला था कि यू आर टू लेट, इट विल नेवर वर्क एंड यू डोंट हैव द मनी, तीनों, और ऐसा नहीं कि एक बार बोला हो या 2 बार बोला हो, कम से कम 2 साल तक यही कहानी चलती रही, दिस विल नेवर वर्क, दिस विल नेवर वर्क, लेकिन वो ये कि हमारा जो जीवन है वो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस में चलता है आगे,
आपने पढ़ा है sufficient mathematics and sufficient electrical theories as well, कि there's nothing that's perfect, you know, it will never happen. So we just need to bear with ourselves कि हमारे जो goals है ना, उसके तरफ हम 5 स्टेप आगे जाएंगे तो 2 स्टेप पीछे भी जाएंगे, लेकिन हम आगे तो बढ़ रहे हैं ना, 3 स्टेप तो आगे बढ़े ना, तो वो एक लेकर और एक विश्वास लीजिए। मैं आपको सच बता रही हूँ वैशाली, कि यदि आपने डिसाइड कर लिया कि ये पॉसिबल है, ऑफ कोर्स क्रेजी नहीं होना चाहिए कि भी मैं कल ही मून पे पहुंच जाऊं, ये तो नहीं हो सकता ना, लेकिन जो एक रीजनेबल आपने गोल्स रखे हैं अपने आगे, रीजनेबल टाइम फ्रेम रखा है आपने आगे, रीजनेबल रिसोर्सेज हैं आपके पास, और यदि नहीं है तो उनको हम कैसे लेकर आएंगे वो रिसोर्सेज को, आप कुछ भी कर सकते हैं, एंड दैट यू मस्ट बिलीव इन। मैम टोटली अग्री मैम। जब मैंने चैनल स्टार्ट करा था, एवरीवन वाज सेइंग मी कि एजुकेशनल चैनल है, देयर आर अ लॉट ऑफ बिग कंपनीज ऑलरेडी देयर, इट विल नॉट वर्क, nobody is going to watch you. Then I felt कि if you are doing something with that intention, तो it has to happen. मैम अब जैसे हम सबको आता है, मेरे को भी आ जाता है कभी कभी कि आई हैव मेड सो मैनी वीडियोज, लोगों ने मेरे से कम भी काम कर रहा है, एंटरटेनमेंट में काम कर रहे हैं, एंड दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स आउट ऑफ इट, एंड आई एम डूइंग सो मच इन एजुकेशनल फील्ड, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग। सिमिलरली बहुत सारे और भी जो एम्प्लॉयज हैं, उनके भी बहुत सारे फेलियर्स अलग अलग फील्ड में होते होंगे। सो आपका क्या सजेशन है कि इन योर ओपिनियन कि एक ऑर्गेनाइजेशन को, एम्प्लॉय को वर्क प्लेस पे या फिर उसकी पर्सनल लाइफ में जो फेलियर्स हो रहे हैं उसको कैसे ओवरकम करना चाहिए? आई थिंक सबसे पहली बात तो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि आपने सोचा कि आप जो कर रहे हैं, यू आर हैप्पी डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, एंड यू आर इन्वेस्टिंग अ टाइम टू गेट हैप्पीनेस, यू नो, तो वो एक बहुत बड़ी चीज होती है। एंड बिलीव मी, कोई हैट नहीं चाहिए किसी को कि मेरे को कोई पहले आप प्रेसिडेंट बना दीजिए, हम तब हम सब कुछ कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। बिना कुछ पोजीशन के आप सब कुछ, बहुत कुछ कर सकते हैं, you know, and I think that I have built myself on the basis of the fact that I have been helping a lot of students. जब मेरे पास खुद अपने लिए भी समझ नहीं थी, let us put it that way, जो मैं कर रही थी सन में, मैं छोटी छोटी चीजें मैं सीख रही थी, कैसे ये सिमुलेशन करना है, कैसे ये करना है, कैसे वो करना है, जो कुछ मैंने सीखा मैंने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया, you know, और अपने always I try to grow the people's confidence also, you know, तो उनको फिर मेरे अंदर भी ट्रस्ट हुआ और मुझे अपने अंदर कॉन्फिडेंस हुआ कि हाँ, दिस इज एक्चुअली पॉसिबल, यू नो। सो एक शेयर्ड विजन जब हो जाता है और आप एक गोल्स की क्लैरिटी जब हो जाती है, तो आई थिंक दैट इज द पार्ट जिसमें टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद फिर वो अपने आप, आपने बोला ना एक्सपोनेंशियली आगे बढ़ रहे हैं, यू वोंट नीड एनीथिंग, इतना मोमेंटम आ जाएगा कि वो जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचेगा ना, और जैसे आइंस्टाइन्स लॉ, एज यू नो, तो द मोमेंट जब एक तालाब में जब हाफ फुल हो जाएगा आपके कमल, तो अगले दिन वो पूरा ही होगा, वो एक कमल और नहीं आएगा, वो पूरा भर जाएगा। तो वो जो एफर्ट है, आपका एफर्ट जो है, इट जस्ट इज नीडेड इन द फर्स्ट पार्ट वेयर यू आर पुशिंग फॉर द फर्स्ट पार्ट, दैट्स व्हाट। तो इसके लिए मैं सोचती हूँ कि फेलियर जो अपने मन में हम सोचते हैं ना, उसको रीडिफाइन करके उसको एक सेटबैक की तरह से ले लें। ठीक है, आज थोड़ा सा सेटबैक हो गया मुझे, लेकिन कल जरूर मैं आगे बढ़ूंगी। तो हमेशा उससे जो लेसन हम निकाल सकते हैं उसको पकड़ें और अपने आप को मोटिवेट करके ही रखें। यू नो, बिलीव मी, बहुत ऊंचे गोल्स भी ना सेट करें, सब कुछ हमें नहीं मिलेगा, यू नो। सो वी जस्ट नीड टू लोअर दैट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस। जब उसको लोअर हम कर लेंगे तो हम अपने आप ही आगे बढ़ते जाएंगे। दैट्स हाउ आई फील। Ma'am, that is so great. That is really true. Whatever you said, I have also experienced. And now I want to tell my students that do you know that ma'am has written about the STIP, the Science, Technology, Innovation Policy for India. Ma'am, give us your top 3 recommendation for Science, Technology and Innovation Policy in India. Well, I'm fortunate, privileged to be asked to do this, first of all. So I'm thankful to the government that they reached out to me to you know, share my views. And I am also very
अवेयर ऑफ द फैक्ट कि अगर मैं नहीं करूं ये तो ये एक क्राइम होगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा तो कुछ देखा है, थोड़ा सा तो कुछ सीखा है कि जो मैं शेयर कर सकती हूँ। और ऐसा नहीं है, हमारे कंट्री में बहुत बहुत एक्सपर्ट्स हैं और बहुत लोगों के पास बहुत नॉलेज है, बट अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, तो आप दूसरे का जब पर्सपेक्टिव देखते हैं तो अपना ही पर्सपेक्टिव और इम्प्रूव हो जाता है। सो दैट्स आई वाज वेरी वेरी थैंकफुल दैट आई वाज इनवाइटेड देयर। सो आई फील दैट हमारे कंट्री में इतने इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे कंट्री में इतने पीएचडीज निकलते हैं, और इतना एजुकेशन सिस्टम में इतने स्टूडेंट्स हैं, इतना यूथ है, तो इनको सबको पहली बात तो सस्टेन डेवलपमेंट गोल्स के बारे में सबको सीखना चाहिए, पहली बात। एंड ग्लोबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का जो एजेंडा है ग्लोबल, उसमें हमको इंसर्ट होना है किसी ना किसी तरह से। सो यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द ग्लोबल पिक्चर, और वो कैसे होगा कि पहले हम नेशनल पिक्चर में आए, पहले हम अपने इंस्टीट्यूशन में आए, फिर अपने अपने स्टेट में आए, अपने कंट्री में आए, और जो डायलॉग है, जो जो ग्लोबल डायलॉग है, हम उसका हिस्सा बने। और वो तभी बन पाएंगे कि जब हम उसको समझेंगे पहले तो। सो आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल एसएनटी एजेंडा। फिर किस तरह से उसकी गवर्नेंस होती है, किस तरह से मैनेजमेंट होते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का, ये चीज की भी समझ जो है, लोगों को 20-20, 30-30 साल लग जाते हैं सीखने के लिए, और उसके बाद फिर अगर रिटायर हो गए और उसके बाद अगर कोई पोजीशन नहीं है आपके पास करने के लिए विथ ऑल दैट एक्सपीरियंस, वो फिर आप उसको इनपुट नहीं कर सकते कहीं पर। तो आई फील कि एक अवेयरनेस फॉर द बायलैटरल, मल्टीलैटरल और रीजनल एंगेजमेंट्स जो हैं, उनको हमें समझना है कि किस तरह से ये हम कर सकते हैं। छोटे से छोटा इंस्टीट्यूशन भी कर सकता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जो हम डेटा लेते हैं सर्न पे, ये सब ओपन डेटा है, और आप देखेंगे, आप लाइफ लैब के पार्ट में आपने साइन अप किया, आई होप यू हैव टाइम टू अटेंड, कि हम ये डेटा ओपन रखते हैं, तो स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल, कॉलेज, एनीवेयर, दे कैन पिक अप द डेटा, एंड विद अ लिटिल हेल्प फ्रॉम सम मेंटर्स दे कैन अंडरस्टैंड कि हम इस डेटा का क्या करें, और वो खुद भी एक हिग्स बोसन निकाल सकते हैं फ्रॉम द डेटा। तो और कुछ नहीं, तो ये एक ट्रेनिंग हुई डेटा को देखने के लिए, बिग डेटा को समझने के लिए, एंड एल्गोरिथम्स और फिल्टर मैकेनिज्म्स को समझने के लिए, डिटेक्टर्स टेक्नोलॉजीज को समझने के लिए। तो दिस इज लाइक अ मिनी ट्रेनिंग अबाउट व्हाट हैपेंस एट CERN एंड हाउ वी कैन डील विद बिग डेटा। सो पार्टिसिपेशन इन मेगा साइंस प्रोजेक्ट्स, आई एम नॉट सेइंग ओनली CERN, बहुत सारे इस तरह से। लाइगो के बारे में आपने सुना होगा, ग्रेविटेशनल वेव्स जहां पर इतनी स्टडी हो रही है, हमारे कंट्री में तो एस्ट्रोनॉमी बहुत आगे है। सो देयर इज सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, एंड आई थिंक दैट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट आई विल से कि इंडियन साइंटिफिक डायस्पोरा, यानी कि जो इंडियंस हैं जो बाहर हैं कंट्री के, मेरी तरह से, पता है आपको कि कितने हैं? 18 मिलियन पीपल आर आउटसाइड द कंट्री हु आर वर्किंग इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस। सो हाउ अबाउट दैट कि हम एक थ्रेड बनाएं कि जिसमें कि हम सब इकट्ठे हों कहीं ना कहीं। हम 18 मिलियन तो इकट्ठे नहीं हो सकते, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ 10-20 कहीं कहीं मिले, कहीं कहीं कुछ करें, कुछ एंगेजमेंट करें, कुछ किसी ना किसी तरह से हम पेनिट्रेट की ये जो ग्लोबल साइंटिफिक फ्रंटियर्स पे लोग बैठे हैं, दे ऑल वांट टू गिव बैक टू देयर कंट्री। हमको क्यों ऐसे लगता है कि कोई हम अपने लिए सेल्फिशली कर रहे हैं एक तरह से, कि हमें लगता है कि हमारे कंट्री में लोग हैं और हमारे हमारे भाई बंधु ही हैं सारे, हम किस तरह से उनके साथ जुड़े और किस तरह से जो कुछ भी हमने सीखा थोड़ा बहुत भी हम उनके साथ शेयर कर पाए। मे बी दे ऑलरेडी नो एवरीथिंग, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी ऑफ डायलॉग तो होने से आई फील कि इंडिया कैन रियली ब्रेक ऑल बैरियर्स और बहुत आगे बढ़ सकते हैं। दैट इज ट्रू मैम। आपने जैसे लाइगो की बात करी थी, वी हैव मंगल मिशन, दीज थिंग्स हैव मेड all of us so proud about science and the mega science projects. So ma'am, the next question is based upon that only. आपकी जो इतनी विजनरी जो आइडियाज है, सो मैम जैसे मेगा साइंस प्रोजेक्ट्स में भी बहुत शॉर्ट रन में वी वांट अ लॉट ऑफ मनी,
In short run, we want more money, a lot of money, and it is going to yield benefit to the mankind in a very long time. अब LIGO से जो हमें आउटपुट मिला या मंगल मिशन पर वो सैटेलाइट पहुंच गया, अब हमें उसका जो आउटपुट मिलेगा वो बहुत लॉन्ग टर्म में. So as a scientist, how do you see this? आप बिल्कुल ठीक कह रही है वैशाली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्टिकुलरली फॉर यंग पीपल, यू नो, व्हेन दे बिगिन देयर करियर्स और व्हेन दे बिगिन इंडस्ट्रीज एंड सो ऑन. उनको तो नेचुरली ये द बॉटम लाइन इज द मनी, यू नो, कि कब हमारे रिटर्न्स आएंगे, हमने ये पैसा डाला, हमारे रिटर्न्स कब आएंगे. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब थोड़ा सा ना इसके बारे में देखना पड़ेगा कि कैसे जो कंट्रीज हैं, जो बहुत एडवांस्ड कंट्रीज हैं, जैसे यूके है, जर्मनी है, फ्रांस है, यूनाइटेड स्टेट्स है, जापान है, ये लोग इतने आगे कैसे हो गए कि जो एवरेज स्टूडेंट है वहां पर, फॉर एग्जाम्पल, वो अपने लाइफ में उस तरह से फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है उसको, जिस तरह से हमारा एक स्टूडेंट, यंग स्टूडेंट जो अभी बिगिन कर रहा है उसको. एंड आई एम वेरी वेल अवेयर, क्योंकि मैं अच्छे से अपने कंट्री में ही पढ़ाई करी है मैंने. सो हाउ डू वी चेंज द नैरेटिव, यू नो? आई कम बैक टू द क्वेश्चन ऑफ बीइंग हैप्पी, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम किस तरह से हैप्पीनेस को डिफाइन करते हैं, हेल्थ को डिफाइन करते हैं, सोसाइटी को डिफाइन करते हैं, और अभी बहुत हमें रास्ता तय करना है इसमें. वो इसलिए कि आज के तारीख में हम और आप बात कर रहे हैं, और सारा जो पेंडेमिक में एजुकेशन सिस्टम फेल ऑन द वेब, सीधे वेब के ऊपर आ गया. और ये वेब किसने बनाया था ये भी आपको पता होगा, राइट? और ये क्यों बना था? क्योंकि फिजिसिस्ट लाइक मी एंड अदर पीपल, दे वांटेड टू शेयर डेटा, राइट? और उसके लिए 1989 में ये लिखा गया था सबसे पहला HTTP प्रोटोकॉल, राइट? अब आप सोचें कि उसने तो ये नहीं सोचा था कि ये मैं क्यों लिख रहा हूं, कि मैं पूरा यू नो कंट्रीज को या फिर पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर दूंगा. पूरा वर्ल्ड इतना छोटा हो गया है आज के तारीख में, दैट इट्स इजियर नाउ फॉर यंग पीपल लाइक यू टू इमेजिन द ग्लोबलिटी ऑफ इश्यूज, यू नो, जो कि हमें नहीं था. हमको तो जब हम जिनीवा ही आए सबसे पहले तो लगता था कि दूसरे प्लेनेट पे आ गए. आई एम टेलिंग यू, इतना ज्यादा मतलब एक डिफरेंस था बिटवीन अ फॉरेन कंट्री एंड बीइंग इन इंडिया. तो आज की तारीख में तो बच्चों के लिए दे हैव नो एक्सक्यूजेस एंड दे रियली वांट टू यू नो, दे वांट टू स्टडी मोर, दे वांट टू सी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही हम, यू नो, जब हम इम्पैक्ट और मीनिंगफुल लाइव्स को लीड कर सकेंगे, that will really be the bottom line and not the money that I make, you know. एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. पैसा आ जाता है, अपने आप आ जाता है जब आप, ये चीज हम, मुझे भी नहीं पता थी इनफैक्ट, और ये मैंने अपने जीवन में सीखा है कि किस तरह से प्रिंसिपल्ड आप मूव करते जाइए आगे, यू नो, विच मीन्स कि आई एम वर्किंग हार्ड, आई विल कंप्लीट माई गोल्स, आई विल डू दिस, यू नो. अपना जो मैंने क्लैरिटी के साथ, जितना क्लैरिटी के साथ आप सोच सकते हैं उतनी क्लैरिटी के साथ आप सोचें. और ये मैं आपको बता दूं कि हमारे पास, मेरे पास बच्चे जितने भी आए हैं, 100% of them have got fantastic jobs, you know, and they are doing extremely well. They are many of them, 90% of them are working in industry, you know. So particularly physics में I have to tell you कि जो यूरोप की इकोनॉमी है, that has 1.6 billion based on physics, you know. So this is incredible, isn't it? तो मतलब थोड़ा सा हम लोगों को गोल सेटिंग इंप्रूव करनी है अपनी, यू नो. एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट इजी एंड इट्स वेरी इजी टू स्पीक. और जब मैं भी आपकी तरह छोटी थी तो मैं ये सोचती थी कि ये लोग आते हैं, भाषण दे के चले जाते हैं, यू नो, हमें पता है सच्चाई क्या है, यू नो. लेकिन हाँ, थोड़ा सा मैं यही कहूंगी कि मैं भी उसी गली से निकली हूँ और मुझे भी पता है कि किस तरह की ये फ्रस्ट्रेशन होता है, स्पेशली जब आप और लोगों को देखते हैं कि दैट अरे उसने तो कुछ पढ़ाई भी नहीं करी है, दे आर डूइंग सो वेल, यू नो. तो ये जो चीजें हैं ना, ये बहुत टेम्पररी होती हैं. और just let's keep focused and keep going. I think that's the major message I would like to say, give you. Yeah. Ma'am, that is so amazing. You talked about World Wide Web, and
I will tell you my experience. When I started my teaching, when I joined college, that time I never ever had idea कि मैं जाकर इटली के स्टूडेंट से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकती हूँ, मैं जाकर लंदन के स्टूडेंट से कांटेक्ट कर सकती हूँ. बट these days all of them are connected with me. A lot of feedbacks I am getting every day. So I never imagined कि मैं जाकर लंदन के स्टूडेंट को पढ़ा पाऊंगी, and it is all because of World Wide Web that we all are using today. And Corona has made it exponentially growing. Everyone is now using it. Even the school teachers who were like the school students previously, उनको नहीं पता था. इवन व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, आई वाज आल्सो कंफ्यूज कि गूगल पे सर्च करते इतना सब कुछ कैसे आ जाता है. हाउ इट आई वॉज लुकिंग फॉर ऑल ऑफ द हाउस कि कैसे आ जाते हैं, ये कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं, इज दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिया और आउटसाइड इंडिया ऑल्सो. सो अभी हर एक स्टूडेंट को पता है फोन क्या है, हर एक स्टूडेंट को पता है गूगल क्या है, हर एक स्टूडेंट को पता है कि इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है. एंड all thanks goes to Tim Berners-Lee who invented it. So मैम ऐसी कुछ और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में बताइए जो CERN से आउट हुई हैं. बहुत बहुत सारी हैं, उसके लिए तो पूरा एक लेक्चर चाहिए होगा, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में बताती हूँ कि आप मेडिकल इमेजिंग का सोचिए. तो यदि आपकी हड्डी टूट जाती है तो आप हॉस्पिटल जाते हैं और आप एक्सरेज लेते हैं फिर, राइट. और ये एक्सरेज हार्मफुल भी होती है बॉडी के लिए. तो आप देखते होंगे कि जो टेक्नीशियन ऑपरेट करता है वो बाहर खड़ा होता है और आपको अंदर अकेला छोड़ के जाता है कि आप लीजिए एक्सरेज, आपका बन रही है फोटो बोन्स की और मैं बाहर हूं. तो लेकिन वो भी तो एक लैब से ही निकला, राइट. मैरी क्यूरी ने कितना काम किया इसके ऊपर. एंड सो सिमिलरली अब जो नए डिटेक्टर्स बन रहे हैं जो हम अपने कोलिशंस को स्टडी करते हैं यहाँ पर CERN में, वो डिटेक्टर्स 3D पिक्चर बना सकते हैं आपके बॉडी के अंदर बिना कुछ इन्वेसिव ट्रीटमेंट करे हुए. And the doctors will be able to see inside the body just by 200 times less dose than compared to X-rays. तो इस तरह के जो नए नए इमेजिंग टेक्निक्स आ रहे हैं, ये सब they are out there. Treatments for cancers, that's happening with accelerators, you know. तो it's unbelievable. क्योंकि जो आपने सुना होगा ये जो रेडिएशन थेरेपी होती है एक्सरेज फॉर कैंसर, इससे आपके हेल्दी टिश्यूज भी डैमेज हो जाते हैं. एंड दैट इज व्हाई अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ आवर कैंसर पेशेंट्स हु गेट रेडिएशन थेरेपी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, बहुत वीक हो जाते हैं. लेकिन यदि आप इंस्टेड ऑफ एक्स रेज आप प्रोटॉन्स यूज करें या फिर हेवी आयंस यूज करें, तो आप अपनी एनर्जी को ट्यून कर सकते हैं, बीम एनर्जी को, कि वो सिर्फ ट्यूमर में जाके रिलीज करे सारी एनर्जी. इट विल नॉट रिलीज एनी एनर्जी इन द हेल्दी टिश्यू अराउंड इट. तो ये मेरा एक ड्रीम है कि इस तरह की जो फैसिलिटीज, जो टेक्नोलॉजी CERN में बनी है और ऑलरेडी यूरोप में चालू हैं फैसिलिटीज, आई वुड लव टू हैव सच अ काइंड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इन आवर कंट्री, जिससे कि हम मेरे सारे जितने स्टूडेंट्स 30 साल में बने हैं, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट बन गए हैं सब लोग जाके एक फैसिलिटी में काम करें और उसको बनाएं अपनी कंट्री के लिए. और उसमें वैशाली will be the communications expert who will do all the outreach and education. Ma'am, I would love to. So you see, I mean बहुत और examples है, weather forecasting है, देखो cyclones आते हैं, you know, उनके लिए भी we need image studies, imagery studies, satellites and so on. तो वो भी CERN में हो रहा है, एक प्रोग्राम है, it's called UNOSAT. क्योंकि ये बहुत computing hungry और power hungry and memory hungry process है, तो ये सब CERN में होता है. and we are partnering with the meteorological departments so that we can share live data for accurate weather forecasting, जिससे कि of course मतलब जीवन बचते हैं फिर, अगर आप बता सकें कि कब साइक्लोन आएगा, कब हरिकेन आएगा. मैम, जैसे आपने ये 3D इमेजिंग के बारे में बताया, आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड. वंस I was watching a cartoon with my cousin. He was watching that cartoon and उसमें क्या हुआ था, the doctor was seeing the thing
inside the body outside with some projector kind of thing, and he was operating inside. So he was asking me, Didi, kya ye India mein bhi hota hai? Is that happens? So I was like, nahi nahi nahi, ye cheez thodi na ho sakti hai, it is just cartoon. And now you said ki ye actual mein sun mein ho raha hai, and the cartoons, even they are so visionary. आपके यहीं से ही ideas पहुंच रहे हैं उनके पास भी. They must have read some article about some person who's their scientist. Ma'am, so आपकी इतनी inspiring journey है. You have a lot of things that you told us. बहुत motivational है सब कुछ. So we are stopping here, and I hope you liked the session. You liked every answer of Archana ma'am, and now you are very curious to know more about her. We will meet tomorrow. We will have Archana ma'am again on the show tomorrow, and we will understand a lot of new things from her. We will understand her point of view. We have seen how differently she have her different point of view for any of the things. She gave us a different perspective about a lot of things, and tomorrow we will have a look about her personal life as well. So we are going to talk about a lot of fun questions as well tomorrow. So I hope you all will be joining with us tomorrow as well. Stay tuned for the tomorrow's session, and I hope if you like this session, you are going to push the like button, subscribe to the channel, share it with your friends, and also you will give me your feedback. Thank you so much.